हेलो। हाँ डैडी, am I audible clearly? Yes, sir. So now we are going to start the chapter solutions and liquids. और इस चैप्टर के अंदर we are primarily going to focus about properties of सर आपका liquids. आवाज थोड़ा लो आ रहा हाँ, is it more audible right now? है। नहीं सर, पहले जैसा ही है। पहले जैसा ही है. One. Properties of liquid state and then properties of solutions. ठीक है. And then like the help a solution or the liquid state provides uh, during reactions. ठीक है. As a solvent, what facilities does uh, a solution provides in reactions, chemical reactions, or in order to in order to control a chemical reaction, what help does liquid state provides? Are we getting this point? यस सर। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में गैस फेज रिएक्शन एंड लिक्विड फेज सर रिएक्शन, आपने स्क्रीन पे क्या शेयर किया है? और स्क्रीन पे मैंने बोर्ड शेयर किया हुआ है जिसपे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस एंड नहीं सर, लिक्विड्स. अभी यस सर, अभी आया। ओके, तो यही चीज शेयर किया हुआ है. फाइन. सो the aim of this chapter is to understand uh, properties and behavior of liquids. Next thing is to understand properties and characteristics of solutions as a homogeneous mixture. The next aim of this chapter is to make you understand or to understand the rules will lead by the solution phase in order to control and change the course of
chemical reactions. Further, it will be like uh, to understand and relate the molecular mass of solute with physical properties like boiling point, melting point, vapor pressure, osmotic pressure is of the solution. So, and obviously the changes which are occurring in them because of the solution, the obviously melting point, boiling point, vapor pressure and osmotic pressure of a pure solvent is going to be different from that of the solution. Okay, how that difference occurs and what is the reason behind that? The reason behind that is uh, the interaction between solute and solvent particles. Interaction between solute and solvent particles. Solvent particles. This is the prime reason. The change in interaction level between solute and solvent particles compared to solvent and solvent particles is the prime reason for changes in these properties between the pure solvent and the solution. Okay. So we will basically look at these. We will look in this chapter. We will look at these aspects of liquid state and solutions. Or at the end of this chapter, we will be able to answer these significant questions which are going to come into a picture. Okay. Now to begin with, uh, if I would have to tell you or lay out a diagram of what we are going to do in this chapter, it is going to be something like we are going to first understand the basic behavior of liquid state. Then we are going to understand about what is solutions and what are different types of solutions or categories of solutions. That is bifurcation of solutions on different parameters. Then we are going to, understand about one of the parameter called ideal solution and non-ideal solution, and we will
study the details of ideal solutions and also the details of non-ideal solutions. We are going to see some relationships for ideal solutions. Non-ideal solutions के लिए relationships नहीं होते हैं, but qualitative understanding आपको जरूर मिल जाती है on the basis of ideal solution. ठीक है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को फिजिकल रिलेशनशिप्स नहीं डिराइव करते हैं, बट आइडियल सॉल्यूशन के लिए यस वी डू हैव टू डिराइव द फिजिकल रिलेशनशिप्स. And then there is going to come something called colligative properties. These are some special properties which are going to just depend upon the number of particles. So इस चैप्टर का एम ये भी है to understand colligative properties and to understand about colligative properties, to understand about colligative properties. Properties, they are 4 in numbers. यहाँ पर ये 4 चीजें जो लिखवाई हैं, actually it's not BP and MP, it is increase in BP and decrease in MP, change in boiling point and so increase in boiling point and decrease in melting point, and then vapor pressure and osmotic pressure, they are called colligative properties. तो इनके बारे में basically details पढ़ना होता है. Okay, so and then at the end we have to study about non-ideal solutions, reason for a solution to be non-ideal, and that's it. तो and वहाँ पर उसका applications क्या होता है, that is something which we have to study. So very first thing is understanding the basics of liquid state. So let us begin our discussion with the understanding of basic understanding of liquid state. About liquid state, it is like liquids are generally isotropic in nature, or liquids are isotropic. वर्ड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? That is something of core importance to us. आइसोट्रोपिक का मतलब होता है आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब होता है मीडियम in which stress, the stress could be mechanical, electrical, or photo,
stress of any kind is transmitted equally in all directions. ठीक है? So liquids are isotropic. I mean, they serve as isotropic medium. Liquids are isotropic in nature. ठीक है ना? Yes, sir. They are going to transfer all the stress which are being applied on it equally in all directions. डायरेक्शन डिपेंडेंसी नहीं होती है. अगर डायरेक्शन डिपेंडेंसी होने लगती है तो देन इट इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रोप. ठीक है? अब इस आइसोट्रोपिक नेचर के लिए जिम्मेदार क्या होता है? लिक्विड स्टेट में द आइसोट्रोपिक नेचर of liquids is associated with missing long arranged order. ठीक है? That is homogeneous arrangement of particles of the ठीक है? मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. However, liquids may have small short range orders. See, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो समझिए. और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ना किसी भी सिस्टम के, दे आर गोइंग टू बी प्लेस्ड फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न. ठीक है? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जैसे यहाँ पर ये अरेंज्ड है और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो L1 है. ठीक है? तो हर पार्टिकल जो कि अरेंज्ड होगा इसमें, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी एट L1 डिस्टेंस. ठीक है? एंड दिस ऑर्डर इज गोइंग टू बी
there at every nook and corner. मतलब throughout the system this arrangement will be followed. ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ में आ रहे हैं तो it may happen that there will be some other distance L2 which is possible. ठीक है, and or if this may be equal to L1 also. Is that okay? And it Yes, will sir. be repeated for long ranges. ठीक है, मतलब अगर हम ये पूरे बल्ब को देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई बड़ा बल्ब ले लिया हमने, तो हर जगह पर जो चीजें जहाँ पर डॉट्स नहीं भी बनाए हुए हैं वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो दिस सिमिलर पैटर्न विल बी रिपीटेड विदाउट एनी चेंजेस. ठीक है, जो यहाँ पर पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा और सेम पैटर्न यहाँ रहेगा, सेम पैटर्न यहाँ रहेगा. यानी किसी भी आर्बिट प्लेस पर आप अपना एक्सप्लोरेशन करते हो ना, यू आर गोइंग टू सी दिस पैटर्न. ठीक है, इफ दिस बिहेवियर इज देयर इट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ठीक है, दिस बिहेवियर इज जनरली फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, because of this reason, because of presence of large range order, the crystalline solids are anisotropic. ठीक है, anisotropic. Why they are anisotropic? See, अभी देख के लग रहा होगा इस डायरेक्शन में और ये वाला सर सेम हो जाए तब तो फिर तो क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा कि नहीं, फिर भी ये एनाइसोट्रॉपिक ही रहेगा, क्योंकि जब अगर मान लो इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया तो नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गया, राइट? तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ डिफरेंट काम करेगा और इस डायरेक्शन में इंटायरली डिफरेंट तरीके से काम करेगा, राइट? तो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया मेरे फोर्स का एप्लीकेशन. दैट मींस इट इज नॉट being the stress is not being transmitted equally in all directions. Yes, sir. ठीक है, एंड अगर कोई भी ऐसा डिफरेंट डायरेक्शन मुझे मिल गया इसका मतलब मेरा सिस्टम जो है वो क्या है? एनाइसोट्रॉपिक है. ठीक है, और मैं कोई ऐसा Yes, सिस्टम sir. लेता हूं जिसमें मैं किसी भी एंगल पर किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स या कोई स्ट्रेस लगाता हूं एंड दैट रिस्पॉन्ड्स एग्जैक्टली इन सेम मैनर, तो फिर हम क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक. लिक्विड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर बिकॉज ऑफ मिसिंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स. ठीक है, हाउएवर लिक्विड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स हो सकते हैं. व्हाट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर मींस? यहाँ पर एक ब्लॉक लेंगे हम तो एक तरह का एक पैटर्न मिलेगा, यहाँ मिलेंगे तो एक दूसरे तरह का पैटर्न मिलेगा, बट पैटर्न मिल सकता है छोटे छोटे जगह. यहाँ एक छोटा बॉक्स लेंगे, यहाँ पर भी एक पैटर्न मिलेगा, बट ये पैटर्न 1 होगा, दिस विल बी प्रोबेबली पैटर्न 2, दिस विल बी प्रोबेबली पैटर्न 3. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है पैटर्न 1 एंड पैटर्न 3 आर सेम, but still they are separated by pattern 2 and hence it is going to be called as short range order, not long range order. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं लेता हूँ टाइप 1, यहाँ पर मैं लेता हूँ टाइप 1, यहाँ भी लेता हूँ टाइप 1, यहाँ भी लेता हूँ टाइप 1, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टाइप 1 है, राइट? Yes, sir. ऑन कंट्रोरी राइट मोस्ट साइड पर मैं लेता हूँ और मुझे आता है टाइप 1, यहाँ पर लेता हूँ टाइप 2 दिखने लगता है, और यहाँ पर फिर से टाइप 1 आता है और यहाँ पर भी टाइप 1 है. कैन आई से इट इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर? नो. ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में एक सेकेंड टाइप आ गया, तो कंटिन्यूटी मुझे पता चल गई कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है. अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है तो इट माइट बी एक्सीडेंटल कि यहाँ पर
सेम टाइप का हो रहा हो, सेम टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा हो, बट दैट डजंट कंफर्म कि इट इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में हमको हर जगह पर सेम टाइप का अरेंजमेंट मिलता है, तभी हम बोल सकते हैं विथ स्लाइट कंफर्मिटी, नॉट फुल कंफर्मिटी, कि यस इट शुड बी अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, next thing is the third point is about this liquid status. The constituent particles of liquid follows kinetic theory of physical state and particle poses 3/2 kT energy per molecule. Of the energy of liquid particles also complies with Maxwell's Maxwell's Maxwell-Boltzmann's energy distribution. ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रिमेंबर गैसेस स्टेट में था, इसका प्राइमरी मोटिव क्या Yes, होता sir. है? काफी सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसका इस एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगा, काफी सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका एनर्जी इस एवरेज वैल्यू से कम होगा।
so it is going to be a distribution of energy. ठीक है, will have energy greater than E by 2 kT per molecule some molecules will have energy less than E by 2 kT. Next thing is liquid particles display Brownian motion as their intrinsic property. ठीक है, Brownian motion basically Brownian motion का मतलब क्या होता है? इट्स अ रैंडम मोशन Brownian motion is the random motion of molecules of solute particles due to interaction with thermal motion of solvent molecules. See what happens is यहाँ पर लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड के अंदर हमने कुछ मिला दिया मान लो, ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स थे और इसके अंदर कुछ सॉल्यूट मिला दिया. Now what will happen? These particles are probably going to be hit by the solvent molecules, ठीक है, और इसके हिट की वजह से ये जो है
ये कभी इधर आगे मूव करेगा, आगे वाले ने इसको हिट किया तो पीछे मूव करेगा, राइट वाले ने इसको हिट किया तो दाएं मूव कर गया। सो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर हिट किया तो ये आगे की तरफ बढ़ा, और जब तक आगे बढ़ रहा था तभी किसी ने इधर से हिट कर दिया इसको, तो ये इधर मूव हो जाएगा। फिर इधर से किसी ने हिट कर दिया तो ये इस तरफ आ गया, ठीक है। फिर किसी ने हिट किया तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, फिर किसी ने हिट किया तो इधर आ गया, फिर इधर चला गया। ये जिगजैग रैंडम मोशन जो होता है इसको बोलते हैं ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इज द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ड्यू टू इंटरेक्शन विद थर्मल मोशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इज दैट ओके? Yes, sir. Thus, it is a direct manifestation of thermal motion of solvent molecules, ठीक है, या due to interaction with thermal motion of solvent molecules, or it can be considered as a direct manifestation of thermal motion of solvent molecules. Is that okay? Now Brownian motion जो है वो generally Brownian particles डिस्प्ले करते हैं। ब्राउनियन पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली ब्राउनियन पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं जो ब्राउनियन मोशन डिस्प्ले करते हुए दिखते हैं, ठीक है। अब ब्राउनियन मोशन डिस्प्ले करते हुए दिखने के लिए क्या कैरेक्टर है, ठीक है। मान लो कोई सॉल्यूट पार्टिकल है और वो सॉल्वेंट के अंदर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। कंप्लीटली डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बिटवीन टू लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में वो बैठ जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. रिजोल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो इतना माइनस्कल हो जाता है कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेसिंग होती है ना उसके बीच में जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। जाके बैठ जाने का मतलब है इट गेट्स अट्रैक्टेड एंड पुल्ड इन दैट स्पेस बिटवीन टू solvent particles or solvent molecules. Because of this, what will happen? I mean, in order to sit into the gap between two liquid state particles, the third particle, which is now being accumulated in between the space, must have to be very small. Am I right? Yes, sir. So, Brownian particles are, or we can just simply write, Brownian motion is displayed by Brownian particles. Brownian particles क्या है? Brownian particles है optimum size Brownian particles are
solute particles which are large enough to be observed and small enough small enough to execute observable random motion. ठीक है, अगर ये पार्टिकल बहुत बड़े बड़े साइज के रहेंगे तो ये अगर लिक्विड के पार्टिकल्स आकर के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अगर आकर के इसको हिट करते हैं तो विल इट मूव विथ देयर हिटिंग? द चांसेस आर हाईली अनलाइकली. Am I right? Yes, sir. They may or may not. Mostly they will not. ठीक है, so the particles has to be small enough so that when they are hit they must execute the random motion, and secondly they must be large enough to be observed. ठीक है, इतने स्मॉल होने चाहिए सो दैट वो थर्मल हिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से मूव करें रैंडमली, एंड दे शुड बी लार्ज इनफ सो दैट हम उनको ऑब्जर्व कर पाए. दे शुड नॉट बी माइक्रोस्कोपिक और नैनोस्कोपिक. ठीक है, सो दैट हम उसको देख ही नहीं पाए नेकेड आई. इज दैट ओके? Yes, sir. आखिरी एक स्मॉल चीज, बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड्स को अगर हम मिलाते हैं तो वो अगर मिक्स करने लायक है तो, अगर मिक्स करने लायक नहीं है, जैसे वाटर के साथ ऑयल को अगर हमने मिक्स किया तो वो मिक्स ही नहीं हो सकते हैं. सो दैट इज अ डिफरेंट केस. इफ टू liquids are able to intermix, that intermixing of molecules of two liquids is a classic example of random thermal motion of the molecules of each solvent. ठीक है, or each liquid. Are you getting this point? Yes, sir. Okay. So you can just write it. Intermixing of molecules
The next point is melting of solid of solid or freezing of liquid is a cooperative phenomena involving concerted rearrangement of large number of atoms/molecules Next point in this regard is, or about liquid stages. There is something called as phase equilibrium. ठीक है, phase equilibrium क्या होता है? Solid to liquid, liquid to solid, ठीक है, और liquid to gas and gas to liquid, or solid to gas directly and gas to solid directly, ठीक है. This is called phase equilibrium. Now this phase equilibrium is always or any equilibrium is a counter balance between dry towards lowest energy and maximum chaos
ठीक है। इन फेज इक्विलिब्रियम phase equilibrium the state of equilibrium is always determined by counterbalance between lowest energy and maximum chaos. ठीक है। Next thing about this is, I mean, if we are going to look at the अच्छा, वेपर प्रेशर वर्ड जो है ये डिस्कस किया था गैसियस में। सो गैसियस जब डिस्कस कर रहे थे तो वेपर प्रेशर Yes, sir. और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी किया होगा। Yes, sir. तो और साथ में ये भी बताया होगा कि तीनों स्टेट में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा रहेगा, सॉलिड का सबसे कम रहता है, लिक्विड का उससे ज्यादा रहता है, और गैसियस में तो ऑब्वियसली वेपर ही वेपर रहेगा। Yes, sir. ये आइडिया बताया था ना कि नहीं बताया था? Yes, sir. ठीक। सो अगर ये बताया था तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आई कैन डायरेक्टली कम टू द ग्राफ। इफ आई प्लॉट फॉर एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के लिए अगर उसके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ ना, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का वेपर प्रेशर ले लें हम, टेम्परेचर के साथ उसका ग्राफ जो होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, the graph exactly looks like this.
This is for solid state. This one is for liquid state. ठीक है? There is a small relationship known as dP by dt, dP by dt, here P is vapor pressure, ठीक है? Rate of change of vapor pressure with temperature is simply equal to L latent heat upon temperature into volume of vapor, ठीक है? ओके, नाउ अगर आपसे ये पूछे हम कि मतलब पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर जो है will it be high for vapor liquid state or gaseous solid state? What will be your answer? The rate of change of vapor pressure with temperature. Will it be higher for solid state or liquid state? Ganesh, Ganesh, are you there? Yes, sir. मैंने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड के लिए ज्यादा है या लिक्विड के लिए ज्यादा है? ग्राफ देख पा रहे हो? Yes, sir. किसके लिए ज्यादा है? व्हाट इज Solid. योर फाइंडिंग? हाँ, बोलो। Solid. सॉलिड के लिए ज्यादा है तो बोलो ना, सॉलिड के लिए ज्यादा है, ठीक है? और इस ग्राफ से हम लोग को Yes, क्लियर sir. है कि सॉलिड के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सॉलिड से, बट रेट ऑफ चेंज जो होता है विद टेम्परेचर दैट इज मोर फॉर सॉलिड्स देन लिक्विड्स।
ठीक है, यस सर। क्लियर रहेगा ना? वेरी गुड। यस सर। दूसरी चीज, अगर हम लोग लिक्विड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करें या फिर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, what type of processes are these? Are they exothermic or endothermic? तो कौन सा? Solid से liquid conversion या liquid से gas conversion, both of them are phase equilibrium, ठीक है, and are यस they सर। endothermic or exothermic? एंडोथर्मिक। They are endothermic. एंडोथर्मिक है तो क्या फेवर करेंगे ये? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे? सॉलिड से लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना? यस सर। सो इसका मतलब हुआ एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड द रीजन बिहाइंड इट इज being an endothermic thing, it will go in forward direction, ठीक है? We can also state that as temperature increases, equilibrium, the phase equilibrium shifts towards right. That means it favors increase in vapor pressure, यस right? सर। ठीक है? So you can just take these 2 points. पहला point क्या है? Rate of change of vapor pressure, ठीक है? With respect to temperature is higher for solid compared to that of liquid. सर आपका वॉइस फिर एकदम लो आ रहा है। Okay, just 1 minute. Over here I said 2 things. Number 1, the rate of change of vapor pressure of solid rate of change of vapor pressure with respect to temperature with respect to temperature for solid phase is greater than that of the liquid also. Solid liquid or liquid vapor phase equilibrium are endothermic nature
vapor phase will be endothermic in nature, that is delta H is positive. And hence forward direction, that is in direction of increase in vapor pressure increase in temperature. Is that okay? Yes, sir. Okay. आखिरी चीज इसमें जो इन्वेस्टिगेट करनी है हमें वो है phenomena of evaporation of liquids को थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये लिक्विड रखा हुआ है और इसको मैं इवेपोरेट कर रहा हूँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? Will it be dependent on temperature? Will it be dependent on surface area? Hello.
Will it be also dependent upon the quantity? Will it be dependent upon quantity of liquid or not? Hmm? आपने थोड़ा रिपीट कीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, मैंने पूछा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड जो है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? विल इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेट ऑफ यस सर। इवेपोरेशन? यस इट विल। ठीक है। विल इट डिपेंड ऑन रेट ऑफ सॉरी सरफेस एरिया? यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, विल इट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड? नो सर। नो। परफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, मान लो लिक्विड ना होकर के यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, ठीक है? सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्वेंट है और दूसरा सॉल्यूट उसके अंदर में मिक्स है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो ऑब्वियसली टेम्परेचर और सरफेस एरिया पर तो डिपेंड करता ही करता, उसके अलावा किसी और चीज पर डिपेंड करता है क्या? हाँ, क्या सर? मैंने पूछा कि अगर यहाँ पर सॉल्वेंट ना होकर के सिर्फ लिक्विड ना होकर के लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कुछ सॉलिड रहता या लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कुछ और रहता, यानी बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन रहता, तो सॉल्यूशन में रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है would it have been dependent on something else also? It is सॉल्यूशन के केस में ना प्योर लिक्विड अगर है, इवेपोरेशन ऑफ प्योर लिक्विड जो है दैट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन दीज टू फैक्टर्स, ठीक है? लेकिन अगर सॉल्यूशन होता है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर है तो दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? दैट इज डिपेंडेंट ऑन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्री फैक्टर्स। पहला तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है? दूसरा सरफेस एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो ज्यादा फास्ट और कम हुआ तो कम फास्ट, ठीक है? और यहाँ पर एक तीसरी चीज भी आ जाती है, वो क्या होती है? रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे कहीं पर भी मिक्सिंग हुई है ना, जैसे सरफेस पर मान लो शुरू में 1000, सिर्फ अभी जो है वो 1000 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? जब हम इसमें कोई सॉलिड या लिक्विड मिला देते हैं तो ये जो सॉल्वेंट है ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर सारे के सारे इसी के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूसरे वाले कंपोनेंट के भी आ जाएंगे, यस सर। ठीक है? और इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेना होता है, वो सरफेस से ही मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो रिलेटिव नंबर जितना प्रेजेंट रहेगा सरफेस पे उसी के रेशियो में मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है? यस सर। सो
द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस चीज के डिपेंडेंट हो जाएगा? इट विल बी ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द मोल फ्रैक्शन, राइट? मोल फ्रैक्शन of solvent. Is that okay? है ना? अब हम लोग रेट ऑफ कंडेंसेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है, कंडेंसेशन, this is directly proportional to, obviously this is also directly proportional to surface area, number 1, ठीक है? टेम्परेचर के साथ इसकी डिपेंडेंसी कैसी रहेगी? डायरेक्टली या इनवर्सली? How is it going to be related to this? कैसे? मैंने पूछा हाउ इज इट गोइंग टू बी रिलेटेड टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड होएगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। इनवर्सली, वेरी गुड। एंड थर्ड थिंग इज रेट ऑफ कंडेंसेशन, ऑब्वियसली वेपर जो ऊपर रहेगा उसी में से वेपर में से ही कंडेंस करेगा ना, राइट? ज्यादा वेपर हुआ Yes, मतलब ज्यादा कंडेंसेशन का रेट रहेगा, और कम वेपर हुआ मतलब कम कंडेंसेशन का रेट रहेगा। एम आई राइट? बात समझ में Yes, आ sir. रही है? और Yes, sir. ज्यादा वेपर और कम वेपर कौन डिटरमाइन करेगा? डू वी हैव अ एप्ट क्वांटिटी व्हिच कैन टेल अस ज्यादा वेपर है या कम वेपर है? किस पैरामीटर के थ्रू हमको पता चलेगा ज्यादा या कम Pressure. वेपर का? वेपर प्रेशर, ठीक है? सो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? अब बेसिकली अगर टाइम फैक्टर के साथ हम रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन को प्लॉट करते हैं ना, तो वी जनरली फाइंड दिस रिलेशनशिप, ठीक है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमने, सिर्फ टाइम को वेरिएबल रख रहे हैं, तो टाइम टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है? तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है? दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। फर्दर रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है दैट इंक्रीजेस something like this exponentially to catch up with evaporation rate, ठीक है? Is this okay?
Am I making sense? And this is the Yes, time sir. when equilibrium has been achieved. Okay, this is the time when equilibrium has got achieved and we have attained the तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, फॉर एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों चेंज करना चाहिए? यस सर, ठीक है ना, यस सर, इट विल रिमेन सेम, यस सर। बट तो मुझे रेट ऑफ, लगा कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो। नहीं, इसीलिए तो साइड में लिखा है कि फॉर एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, this investigation is for a constant temperature. The rate of evaporation is going to be constant and rate of condensation is going to increase too. क्योंकि ये वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा और जितना ज्यादा इवेपोरेट होएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसलिए रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ता जाएगा। यस सर, ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम रीच करेगा और ये इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हैं, राइट, एसवीपी। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स का क्या बोलते थे फ्लूइड का? equilibrium vapor pressure is also known as saturated vapor pressure or it is also commonly referred as vapor pressure. Last thing is the liquid having high vapor pressure having high vapor pressure implies more volatile. This also implies it has low boiling point, low boiling point, low boiling. हेलो, और जस्ट 2 मिनट रुक जाइए ना, मैं चेक करके आपको कॉल बैक करता हूँ। It implies low boiling point. It also implies low heat of vaporization. Low potential energy of attraction among
liquid molecules. And this further indicates that low number of electrons actually low number of valence electrons in liquid molecules. Is that okay? ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, Yes, sir. ठीक है? These are all informations about liquid state and pure liquid state. Next lecture में I'll start discussing about solutions and their properties. ठीक है? Okay, sir. Okay. Bye for today. We'll meet again tomorrow to discuss about. सर कल मॉर्निंग को होगा ना आपका लेक्चर? हाँ, कल मॉर्निंग में ही रहेगा. ओके सर. ओके.